Congratulations on wonderful trailer. Thank you. Thank you. Of course, I want to start with both of you. You've been, like we all know, you've been struggling with this story. You had, I have spoken to you in before also. That time also, you told us about this story, Right. that we have this story and we really want to make it. So I want to know, like this story has been with you for a long, long time, and you have worked with big names, big banners in the industry. Still had to struggle to come to this day when you are finally releasing the film. So what was that period when there was a struggle and you had to approach different people but get rejection? मुझे लगता है कि कोई भी अच्छी चीज़ बनने के लिए ना उसमें कुछ ऐसा होता ही है, ऐसा मुझे लगता है। और ख़ास करके दुकान जिस तरह से बनी है और अब जो रेडी होके बाहर आ रही लोगों के सामने, तो आई वुड से स्ट्रगल, वो स्ट्रगल अगर वैसी नहीं होती तो शायद ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं होता। तो मैं तो कहूँगी कि बहुत गर्व है हमें इस स्ट्रगल पे, और ये होती ही है। मतलब इस इंडस्ट्री में कोई ये सोच कर आए कि एक बेड ऑफ रोजेज़ है, उस पर चल के जाएंगे और फिल्म बन जाएगी, वो नहीं होने वाला। तो यू नो, ऑफ कोर्स थी स्ट्रगल, जो कि किसी भी नए फिल्म मेकर को होगी जब भी वो आएंगे सामने, बट मज़ा आया। So struggle is not like something you find or encounter on the way. It is a part of your life. पहले बनाने के लिए, फिर रिलीज करने के लिए, फिर ऑडियंस का रिएक्शन जो चाहते हो वो मिलने के लिए। तो स्ट्रगल तो जिस दिन आपने डिसाइड किया कि आपको फिल्म बनानी है, आप ये मान के चलो स्ट्रगल शुरू हो चुकी है। तो that's how it is. Yeah, but you have established your name. So after that, this struggle is something which I'm sure nobody expected. Especially if you are new in the industry, you have to struggle. That is very common for I think all of us. But when you have worked with bigger banners and big producers or directors, so again you had to struggle to get that release. मैं आपको बताऊँ, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो जिस तरह का सब्जेक्ट हम लेके चल रहे थे, अगर शायद हम एक लव स्टोरी बनाने निकल पड़ते, इजी ब्रीजी सी रोम कॉम बनाने निकल पड़ते, तो शायद ये स्ट्रगल वैसी नहीं होती। या फिर हम the other choices like for that matter casting also, क्योंकि it depends on your choices, you know। अगर आप सिंपल स्ट्रेट चॉइसेस लेने वाले हो तो आपको कम स्ट्रगल मिलेगा, बट अगर आपको जो चाहते हो, जो जिससे आप रिलेट कर रहे हो, जिसको देख के आपको लग रहा है नहीं मुझे ये चाहिए, ये स्क्रिप्ट में चाहिए, तो फिर आपको वहाँ पे चैलेंजेस मिलेंगे। मैं सारे पंगे पहली फिल्म में लेने थे। तो एक्चुअली जब आप कुछ नया करने जाते हो ना, तो स्ट्रगल होता है, like she's saying. I also want to know, like there have been films made on surrogacy, though they touch different parts of surrogacy. सरोगेसी पे और फिल्में बनी है क्या? जैसे और पहले गुजराती में बनी है, मराठी में बनी है। हाँ, I'm talking about Marathi film because that was like quite Malai popular. Baichi. And it came like 20 years back, and after that Mimi was made on it. Yes. So you had story before that, or you had to change the story after watching the film? I want to know that. Luckily not, मतलब. After watching Mimi, we got inspired. No, not Mimi. I'm not talking about Mimi. I am talking about the Marathi film because that was made like 20 years ago. Right. सो देखिए, हमारी फिल्म तो शुरू से एक कहानी कहने जा रही थी, एक वर्ल्ड की, एक दुनिया की, विच इज़ कमर्शियल सरोगेसी, विच लकीली फॉर अस नो फिल्म हैज़ येट स्पोकन अबाउट दैट। यू नो, दिस इंडस्ट्री ऑफ से 100 women, 200 women in Anand who come from different villages and do live in under one roof when they're all pregnant together, you know. That is the idea that we had from the beginning. So luckily for us, nobody had worked on that. So we did not have to tweak anything in our script or our idea to make it different from them. They were already different. When you watch the film, you'll know it's completely different. Like you said that you had to do a lot of research also for this particular topic. I want to know a bit about that also. Because writing subject is very tricky at the times. You can't. There is a thin line. You can't overstep it. And nowadays people have knowledge, people get offended also with if you show something wrong. So what kind of research you had to do, and how long you had to take to incorporate those findings in your story? It was a long process. 4 से 4.5 साल करीब लिखना और रिसर्च मिला के मैं कह रहा हूँ। तो वो इसलिए भी क्योंकि वो इंडस्ट्री डिफाइंड इंडस्ट्री नहीं थी, वो एक बस चल रही थी। देयर वर सर्टेन रूल्स बाय द गवर्नमेंट की
अपना खुद का बच्चा होना चाहिए सरोगेट का, और 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते सरोगेसी। एक बेसिक फ्रेमवर्क था गवर्नमेंट का, तो उसके हिसाब से वो बार बार बदलता जा रहा था, तो हमको वो रिसर्च बार बार करनी पड़ी कि सब कुछ चेंज हो रहा है। फिर बैन लग गया, विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द फिल्म. In the film, you'll see it is there, the commercial surrogacy being banned in India. So, of course, तो इसीलिए ज़्यादा हमको रिसर्च की ज़रूरत पड़ी. तो Is it based on any real character which you met? Everything that you see is based on real characters. That's why the trailer says based on true events, because a lot of incidents in the film are from real characters. In fact, Monica, when she took up the role, before we went on floors, she came with us to Gujarat. She met the actual surrogates also. She stayed in, Anand in Ahmedabad with us for a while, like in the village where we were shooting, and she went to the homes of people. So even the acting that she has, imbibed the accent, that's also research based. So at every step, things have been real. I was about to ask her that because playing mother on screen is not easy. Plus, you are playing a pregnant woman with prosthetic and all. How easy and difficult it was for you to prep and to portray those emotions? I think, embracing like motherhood and just getting to know the maternal instinct, that was like an experience. I'll not say challenge or something, but आप हर समय उसके मदरहुड का लव, जो माँ का प्यार होता है उसके एक्सेप्ट, मतलब वो क्या होता है उसके, वो आपको समझ है, लेकिन जो देने वाला है उसकी आपको समझ नहीं है. तो वो काफ़ी मतलब इट वाज एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. बट आई थिंक जिस तरीके से कैरेक्टर को लिखा भी गया है, शी इज़ बिट ऑफ अतरंगी. शी इज़ नॉट दैट पैम्परिंग वाली मदर की इफ़ द चाइल्ड इज़ क्राइंग तो शी विल बी लाइक चुप हो जा. शी विल स्टार्ट लाफिंग, इफ़ द चाइल्ड विल फॉल, इफ़ ही इज़ फॉलिंग, सो शी विल बी लाइक इतना बड़ा हो गया अभी भी नहीं चल पा रहा है, शी विल स्टार्ट लाफिंग. सो उसमें कुछ नुआंसेस ऐसे हैं. So I was like, okay, this is some different kind of mother. She's not typical mother. So for me that was something interesting कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग है करने के लिए, या कि ना कि जो हम लोग देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से एक माँ का पोर्ट्रेल दिखाया जाता है. So I think that was something different. Also, I want to know about the dialect also, which you've got very perfect in the trailer, also in the songs and even mannerism. So how hard you had to work on that? So I think firstly I'll give a credit to them, क्योंकि क्या होता है जब आप एक डायलेक्ट कोच के पास जाते हो किसी भी चीज़ का उसके समझने के लिए, तो या तो ये होना चाहिए कि वो आपके डायरेक्टर से रूबरू हो कि उनको कितना चाहिए. और थोड़ा सा ना ट्रिकी पार्ट होता है डायलेक्ट में, क्योंकि आपको ठेठ वहाँ का भी नहीं रखना है कि आपकी लेमैन ना समझ पाए, और आपको इतना भी सुपरफिशियल नहीं करना है कि लोग बोले कि ये तो बहुत ही फेक लग रहा है. तो आपको बैलेंस ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई थिंक दे आर वेरी गुड विद दैट, बिकॉज इन्होंने जो इतना भी रिसर्च किया है, द प्रोजेक्ट्स दे हैव डन रामलीला में, इट्स लाइक अ बैंग ऑन डायलेक्ट कि कौन से शब्द में हल्का सा स्ट्रेस देने से सिंपल एक वो आपको साउंड सुनाई देगा कि यस समथिंग लाइक दैट. तो फर्स्टली आई थिंक हम लोगों ने जो स्क्रिप्ट में काम किया था वो सिटिंग में किया था, एंड आई हैव, एंड नॉट ओनली मी, ऑल द एक्टर्स हैव फॉलोड दैट ओनली. एंड देन सेकेंडली हम लोग जब आनंद गए थे और रियल लोकेशन में जाके वहाँ से वहाँ के लोगों को मिलना, द होल ऑब्जर्वेशन काइंड ऑफ थिंग कि उधर क्या चल रहा है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग आई थिंक. तो हम लोग 1-2 हफ्ता वहाँ पे रहे, तो वहाँ के लोग कैसे बोलते हैं, कैसे क्या है, तो वहाँ आप रियल लोकेशन में जाके आई थिंक आप ज़्यादा कैप्चर कर सकते हैं. तो दैट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस. गालियाँ मैं ही सीखी मोनिका. हाँ, घर जाके. I am sure it will be useful in the future. मैं रामलीला से लेके यहाँ तक के सफर में बोल सकती हूँ, जिस शिद्दत के साथ रणवीर सिंह ने गुजराती को पिकअप किया था रामलीला में, उसी शिद्दत के साथ मोनिका पवार ने पिकअप किया है गुजराती को फॉर दुकान. मतलब I can tell you that. Yeah, and दोनों ने Gujarati is समर्पण. something very tricky actually. It is not an easy accent which you can But catch. it's with all the accents. क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, हमको आप कोई भी एक्सेंट देखो हम उसको थोड़ा सा ऐसा लाउड, बट इफ़ यू विल सी अ गुजराती पीपल स्पीकिंग इट लुक्स वेरी नॉर्मल. बट जैसे हम बोलने में आते हैं तो हमारा जो एनंसिएशन होता है वो बढ़ जाता है, जैसे हम बहुत सारी फिल्मों में देखते हैं. तो वो मेरे लिए वो था कि वो बैलेंस कैसे मिलेगा आपको, कि आपको समझ भी आए आपकी, बिकॉज वी आर नॉट मेकिंग फिल्म फॉर गुजरात पीपल, राइट.
इमोशंस, तो सब Correct. पूरा आपके हिंदुस्तान सबको को ही समझ आनी चाहिए वो। बिल्कुल। और ये बात हमें दिखी जब अभी हम रिसेंटली दिल्ली गए थे। दिल्ली में ट्रेलर का जो रिसेप्शन हुआ है, वहाँ के लोग ना अगर हल्का सा भी उनको लहजा समझ नहीं आता ना, वो एकदम पुट ऑफ हो जाते हैं। पर वो यार अपने डायलॉग्स को रिपीट कर रहे हैं, जब जो मोनिका का स्टाइल है उस स्टाइल में बोल के बता रहे हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगा, यानी कि अच्छा है रिसीव कर रहे हैं अपनी चीज़ को। तो गुड, देयर इज़ अ मार्केट फॉर दिस। I want to know about the casting. Like you guys have said that we always wanted, like he said that it was a safe bet to do go for a theatre actor, and I'm sure you may have approached other people also Yes, before. She also knows about it. But it is, I think, natural for all the directors, especially first-time directors, to go to different फर्स्ट टाइम people. डायरेक्टर्स जब आप करने निकलते हो ना, स्क्रिप्ट आपकी जब पूरी होती है तो आप सबसे पहले प्रोड्यूसर्स को अप्रोच करते हो, एंड यू सो लाइक वी वर इन टच विद द स्टूडियोज एंड प्रोडक्शन हाउसेस। तो उनका पहला ये होता है कि यार हु आर यू कास्टिंग इन इट, सो हु आर यू कास्टिंग इन इट इज़ अ क्वेश्चन दैट पुट्स प्रेशर ऑन अस कि अच्छा तो मतलब एक इस तरह का इस लेवल के नाम हमें डिस्कस करने होंगे, Sellable अप्रोच actors. करने होंगे। हाँ, जो जिन्हें हम इन दैट सेंस सेलेबल तो वो है जैसे कि जिसमें आपके प्रोड्यूसर का विश्वास है और आपने उसको वो किया, Exactly, लेकिन yeah. सेलेबल की काम आसान हो जाए, तो वो वाली बात थी। ऑफ कोर्स कोविड के बाद वो चीज़ और भी ज़्यादा मुश्किल कर दी गई, पर उस वक्त ये प्रेशर्स होते थे हम पे, और किस्मत ही कहेंगे इस बात को कि वो बात कुछ उस तरह से नहीं बनी, एक अलग तरीके से बनी। बट मुझे और सिड को बहुत श्योर था हमेशा से कि हमें एक बहुत ही पावरफुल एक्टर चाहिए इस रोल को निभाने के लिए। सेंटर में हमारे एक बढ़िया एक्टर है, और इवन जो आसपास आप ये पोस्टर में लड़कियां देख रहे हैं, ये सब गुजरात की थिएटर एक्टर्स हैं, ये गुजरात से ही हैं लड़कियां, और इतनी काबिल हैं सब, हर एक की एक अलग खिल के आती है बात। सोहम और मोनाली हैं फिल्म के अंदर, बहुत अलग तरह के एक्टर्स हैं वो दोनों वैसे लाइफ में। मोनाली तो सिंगर है एक्चुअली, पर उनको हमने एक अलग ऑफ रूप में कास्ट किया है, यू नो। सो सिकंदर खेर, नॉट सीन हाउ ही इज बीइंग सीन इन दिस फिल्म, सो या Yeah, he has a love song also. He's singing also. Why not? So that's different. Also, ये हमने approach तो किया बहुत, and to finally raise this question is that like I just said 2 minutes ago, there was a particular, because of the producer, this thing pressure. There was a particular A-lister who was ready, and we chose her because she was our first choice on that, and we didn't succumb to that pressure, and I'm glad we didn't. और एक पॉइंट पे ये सपना ही लगता था कि हम दोनों को था कि यार क्या हम बना पाएंगे ये फिल्म मोनिका के साथ में। कूडोज टू आवर प्रोड्यूसर्स ए झुनझुनवाला एंड एस.के. आलूवालिया हु बैक्ड अ विजन ऑन दिस, बिकॉज प्रोड्यूसर अगर सपोर्ट नहीं करता है ना तो नहीं तो होता। फिर कितना ही कन्विक्शन रख लो आप। फॉर देम टू इवन टेक इट टू द लास्ट लाइन, द फिनिश लाइन, इज कमेंडेबल। One last question I want to ask you is about portrayal. Like prosthetic, doing a prosthetic is a very challenging process. Also, it has to look very good when you want to show the stomach 9 months, 3 months, 6 months. The shape is different. So, Right. how did you work on it, and how especially you carried it? Because the mannerism changes with the prosthetic. If you see the real So mother, like I really haven't done any work. Prosthetic has done like मैंने तो कुछ किया ही नहीं because like you said कि आपका postures, आपका सब कुछ बदल जाता है. So I'm very thankful कि हमारे पास prosthetic था and it helps you a lot, you know. आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपका बैठने का, उठने का, किस तरीके से क्या करोगे, सब कुछ बदल जाता है. So it helps as an actor. और उसमें थोड़ा सा हमको ये होता था, कंफ्यूजन हो जाता था क्योंकि कितने सारे बैलेंस बने थे, 4 मंथ का, 6 मंथ का, कभी 6 महीने का पहनना है तो 2-3 महीने का पहन के आ गए. अरे लाइट जा रही है, सनडाउन होने वाला है, जल्दी से मोनिका का बेली चेंज करो. तो ये भी होता था काफ़ी हद तक. बट हाँ, मैं कहूँगी VFX का बहुत बड़ा योगदान है. और लोगों को ना आदत नहीं है विजुअल देखने की. The visual is, I think, you know, wearing and everything is fine, but the visual, correct, क्योंकि आपने कभी देखा नहीं है, और देखा भी होगा तो आपने ये what do you call it, photoshoots में देखा होगा. photoshoots में they do celebrity ना? photoshoots. वहाँ देखा होगा. Otherwise people still think like low about this thing. कि- मतलब हमारे देश में तो जो औरत प्रेग्नेंट होती है वो खुद ही अपने बेली को नहीं देखती है, बाकी किसी को दिखाना तो दूर की बात है. इट्स सच अ बिग टैबू. मतलब गुजरात में ऐसा नहीं है, जहाँ हाँ. की ये कहानी है वहाँ पे तो औरतें, वहीं से तो हमें ये विजुअल समझ में आया कि यार ऐसा होना, ऐसा दिखाना चाहिए. कितने बढ़िया से बिंदास तरह से वो लोग, जैसे कोई डॉक्टर शायद अपना कोट पहन के घूमता हो, वैसे वो अपना बेली लेके घूम रही है. They're doing business out of They're that. doing तो business. ठीक है. गर्व की बात है. प्रोफेशन. अब मैं आपको बेस्ट पार्ट बताती हूँ कि जब हम VFX करवा रहे थे इन बेलीज पे अपना, तो जो रेफरेंस इमेजेस यूज़ कर रहे थे ना, वो जो रियल में लोग प्रेग्नेंट थे वो फेक लग रहे थे. हमारी बेली.
All the best for your movie and thank you so much. Nice talking to you. Nice talking. Thank you so much.